مجھے معلوم نہیں اس بارے میں انہوں نے ان کو کیا کمٹمنٹ دی ہے. کمٹمنٹ تو اس دن بھی تھی جب فاروق صاحب, عمر صاحب اور حسنین مسعودی صاحب پرائم منسٹر سے ملے اگست میں, یہ جو 370 ختم ہونے سے پہلے, تبھی انہوں نے ان کو ایشورنس دی تھی کہ 370 کے ساتھ کچھ. دیٹ از واٹ عمر صاحب اینڈ فاروق صاحب ٹولڈ اس کہ پرائم منسٹر نے ایشورنس دی ہے 370 کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا, مگر اس کے بعد 370 کو جس طرح ختم کیا وہ آپ کے سامنے. You believe that they are compressed completely, the national conference is compressed? نہیں, 50 سیٹیں ہیں ان کے پاس, 3 ممبر پارلیمنٹ ہے ان کے پاس. اب ان کے پاس جرت نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ ہاں, ہمارے پاس تو 16 تھے جب دلی میں بی جے پی کی سرکار تھی, مگر ہم نے تو سب اپنا ایجنڈا چلایا. ابھی 28 تھے تب بھی ہم نے ایجنڈا چلایا, بی جے پی کے ساتھ سرکار تھی. آج تو 50 ہونے کے بعد بھی they are not able to do what they want to do. اس میں ہم کیا کریں؟ But they have committed to people regarding the power facility of 300 units in future. جی Ma'am, power کی بات آپ نے بدقسمتی سے یہ جو سرکار ہے این ڈی اے کی, جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے, جو ہمارا آئین ہے, دن بہ دن اس کو ختم کرتی جا رہی ہے. یہ انڈیا ایک فیڈرل کنٹری ہے, یہاں فیڈرل سٹرکچر ہے. جب آپ 1 نیشن 1 الیکشن کی بات کرتے ہو, آپ کہیں نہ کہیں اس فیڈرل سٹرکچر کو انڈرمائن کرتے ہو. اور وہ کہتے ہیں 2047 کے بجائے وہ پیچھے جا رہے ہیں. جب ملک آزاد ہوا تھا تب 1 نیشن 1 الیکشن ہوتا تھا, مگر اس کے بعد جتنا پاور ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ریجنز میں, ایک فیڈرل سٹرکچر بنا, اب وہ ہمیں واپس اسی ڈکٹیٹرشپ کی طرف لینا چاہتے ہیں, جو میں سمجھتی ہوں بہت غلط ہے. میم ایکسپیکٹیشنز آف بجٹ, اگر بات کریں یونین بجٹ جو ہے ابھی آنے جا رہا ہے, یو بلیو دیٹ فار دی سوسائٹی اٹ ول بی. میں چاہتی ہوں کہ جو بجٹ ہو جموں کشمیر کو لے کے, اس میں پہلی پریورٹی یہاں کی ان ایمپلائمنٹ کو دور کرنے کی ہونی چاہیے. دوسری, یہاں کی جو بجلی کی کھپت ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, بیکاز آئی تھنک یہ اس وقت بہت بڑے ایشوز ہیں. ان ایمپلائمنٹ کے اوپر دھیان دیا جانا چاہیے, ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ الیکٹریسٹی پاور کے اوپر دھیان دیا جانا چاہیے. وائس پریزیڈنٹ صاحب, چیئرمین پارلیمنٹری بورڈ, جنرل سیکرٹری صاحبان, ہمارے ڈیلیگیٹس جتنے بھی جموں کشمیر سے آئے ہوئے ہیں, سب کو میرا آداب, میرا سلام. میں کیا کروں, یہ مانتے نہیں ہیں, کھڑے آپ اور میرے بیچ میں انہوں نے دیوار بنا دی, کیا کریں؟ اگر آپ نیچے بیٹھیں گے تو مجھے لگتا ہے کوئی دقت نہیں ہوگی. اعجاز تریش گلاس خان عمر. آج جیسا کہ میری صاحب نے بھی بتایا, آپ تو خاموش ہی نہیں ہو رہے. آج ہم بہت دیر کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے, جنرل کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے, اور ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ جب جموں کشمیر کے حالات اور ہمارے پارٹی کے حالات کچھ مختلف نہیں ہے ایک دوسرے سے. ہماری ریاست, جس کو میں ابھی بھی ریاست کہتی ہوں, جموں کشمیر ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے, اور ساتھ ہی ہماری پارٹی بھی ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی ہے. میرا یہ آپ سے کہنا ہے, اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہماری پارٹی پی ڈی پی بنی ہے مشکل دور سے مقابلہ کرنے کے لیے. اگر آپ یاد کریں گے 99 میں جب ایک جماعت کے پاس 60 سے زیادہ ایم ایل اے تھے, سب کچھ تھا, مرکز میں بی جے پی کی سرکار تھی, وہاں بھی ان کا ایک وزیر تھا, یہاں بھی ان کی سرکار تھی, 60 ایم ایل اے تھے, مگر اس وقت جو جموں کشمیر کے حالات تھے ان کا اگر کسی نے مقابلہ کیا, مجھے آج بھی یاد آتا ہے جموں کشمیر کا, خاص کر بالخصوص وادی کا وہ کوئی ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں میں اور میرے ورکروں نے ٹاسک فورس کے خلاف, اخوانیوں کے خلاف, زیادتیوں کے خلاف دھرنا نہ دیا. اس وقت بڑا مشکل تھا دھرنا دینا. مجھے یاد ہے کئی بار میرے ورکرز نے مجھے کہا, محبوبہ جی آپ کیوں بات کرتی ہو اخوانیوں کے خلاف, یہ اڑانے خبر کا اتنا سامنے آئی ڈی اڑانے تھے, اس سے ایسا ماحول تھا. مگر آپ کو پتا ہے کہ اس جماعت کو شاید
नीयत अल्लाह ताला की, जो एक हमारा अल्लाह ताला का हमको साथ है और हमारी नीयत साथ है। ये तो आप सोच सकते हैं 16 मेंबरों के ऊपर सरकार बनाना, 16 मेंबरों के ऊपर बीजेपी की सरकार दिल्ली में, यहाँ बड़े बड़े जेलों के दरवाजे खोल देना, रास्ते खोल देना, डायलॉग करवाना। ये आज तो यहाँ 70 एमएलए भी रहे हैं, किसी ने नहीं किया, आज 50 है। मुंह खोलते हैं क्या? रोशा खोला, बात करते हैं। आज 2.5 महीने हो गए बात चलती है कैदियों की, हम बात करते हैं, मगर आपने क्या जो रूलिंग पार्टी है उनकी जबान से कैदियों का नाम सुना 2.5 महीने में? सुना कहीं? सुना? अब खुद सोचिए, हमने न सिर्फ कैदियों को रिहा किया बल्कि बड़े बड़े लीडरशिप, ये गिलानी साहब, यासीन मलिक साहब जो जेल में हैं, शबीर शाह साहब, उनको रिहा किया उस वक्त जब हमारे पास 16 मेंबर और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। आज भी वही माहौल है, आज भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 एमएलए हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जब मैं कहती हूँ पीडीपी बनी है चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए, मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए, और डट के मुकाबला करती भी है। मैंने सुना, अभी हम किसी की मुखालफत नहीं करना चाहते हैं, लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, हम चाहते हैं कि ये लोगों के काम करें, मगर मुझे हैरानगी होगी जब वजीर आला साहब ने कहा अपनी पार्टी को आप चुप हो जाओ, खामोश रहो, बात मत करो। हम तो सोचते थे यहाँ जब एक चुनी सरकार आएगी, चुनिंदा सरकार आएगी, जो जम्मू कश्मीर की खामोशी है वो खामोशी टूटेगी, यहाँ जो लोग मुसीबत में फंसे हैं वो बात करेंगे और ये लोग उनकी बात करेंगे। बेरोजगारी अरूज पे, उसमें भी जो हमारे नीट के एग्जाम, उसमें 50% पहले पूरे मुल्क को जाती है सीटें, उसके बाद जो बचता है उसमें भी जो ओपन कैटेगरी वाले नाराज, रिजर्वेशन वाले नाराज के हमारा कोटा कम है, ओपन कैटेगरी वाले बताते हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है, बिजली का कहीं नामो निशान नहीं। तो ये सब मुसीबतें, मैं तो बड़ी बात नहीं कर रही, मैं मसले कश्मीर की बात की हल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 370 की भी इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं करती। इन्होंने तो स्टेटहुड के लिए भी बोला अपनी पार्टी को चुप करके बैठो, बात मत करो। तो ऐसे में कौन बात करेगा? ऐसे में फिर आपके कंधों पे ये जिम्मेवारी आती है। मुझे मालूम है आप लोग शायद अपनी जगह मलाल है आप लोगों को कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हम क्यों बात करें। नहीं, पीडीपी बनी ही है जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल की आवाज बनने के लिए, दिल की बात करने के लिए। मैंने परसों में कोई देख रही थी वो हल्ला बोल, वहां वो सवाल पूछ रहा था, मैंने इल्तिजा को बोला आज सुबह, मैंने कहा आपके पास अभी कई सवालों के जवाब आपको मालूम नहीं है, आपको पीडीपी का सेल्फ रूल अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, आपको पीडीपी की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसने जो वहां मॉडरेटर था, किसी ने सवाल पूछा कि फर्क क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया, उसको डस्टबिन में फेंका, आपने सेल्फ रूल किया, मगर इसके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा जवाब ये था कि हमारे पास रेजोल्यूशन पास करने के लिए मेजॉरिटी नहीं थी, मगर उसके बावजूद रेजोल्यूशन पास किए बगैर हमने सेल्फ रूल को इंप्लीमेंट करने की शुरुआत की। सेल्फ रूल क्या है कि बॉर्डर्स को खत्म कर दो, बॉर्डर खत्म करो, जम्मू कश्मीर में डिफेक्टो आजादी हो, डिजोरे जो है वो रहे। डिफेक्टो आजादी, फ्रीडम क्या होता है कि आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ किसी रुकावट के बगैर। मुजफ्फराबाद रास्ता तो सेल्फ रूल का ही एक हिस्सा था, रावलाकोट रास्ता तो सेल्फ रूल का ही हिस्सा था, पाकिस्तान के साथ बातचीत सेल्फ रूल का हिस्सा था, हुर्रियत के साथ बातचीत सेल्फ रूल का हिस्सा था। और उसके बाद ये मसला किसने उठाया कि जम्मू कश्मीर का जो असासा है, जो पावर प्रोजेक्ट है, वो ट्रांसफर होने चाहिए।
वो तो इसी 16, 21, 28 वाली पार्टी ने ये मसले उठाए, 50 और 60 वाली तो ने तो पिछले 17 साल में नहीं उठाए। इसलिए यहाँ जितने भी डेलीगेट हजरात आए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, आपको दिल शिकस्ता नहीं होना चाहिए। ये आजमाइश थी, हमें इस आजमाइश पे पूरा उतरना है, हमें कोशिश करनी है, हमने देखना है कि जो पीडीपी का जो एजेंडा है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पीडीपी का एजेंडा आपको याद रखना चाहिए, ये पीडीपी का एजेंडा नहीं है, मुफ्ती मोहम्मद सईद का एजेंडा है। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जिन्होंने पूरी जिंदगी में 3 साल और 10 महीने चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के, मगर जो काम उन्होंने उसमें किया वो आज तक किसी ने 50 साल की लीडरशिप में नहीं किया हुआ है। उनका विजन, उनकी सोच, उनका समझ, जब मैंने 2014-15 में मुफ्ती साहब से कहा, जब हमारी बीजेपी के साथ बात, पहले तो बीजेपी के पास हम नहीं गए, बीजेपी हमारे दरवाजे पे आई और किसी मामूली आदमी को नहीं भेजा, जनरल सेक्रेटरी को भेजा, हम नहीं गए। और उसके बाद जब बातचीत चल रही थी तो मैंने मुफ्ती साहब से कुछ सवाल किए, तो उन्होंने मुझे कहा देखो महबूबा, अगर मुझे जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालना है तो वो दिल्ली की मदद के बगैर आप नहीं निकाल सकती। उन्होंने कहा अगर जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखना है तो आप जम्मू के मैंडेट को इग्नोर नहीं कर सकती हो। हमारे पास तो 28 ही थे, आज तो इनके पास 50 है। मेरे ख्याल में शायद ही कोई दरवाजा दिल्ली में है जहां इस वक्त की सरकार नहीं पहुंची। बताओ मुझे, कहां नहीं गए वो? क्यों? क्योंकि जो बात मुफ्ती साहब ने कही थी कि जम्मू कश्मीर को दलदल से निकालने के लिए दिल्ली का साथ जरूरी है, उनको एक तजुर्बा था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से के साथ काम किया। वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने मुजफ्फराबाद रोड खोलने की बुनियाद डाली, रावलाकोट रोड खोलने की बुनियाद डाली, फिर बेशक उसको यूपीए की सरकार में खोला, जिन्होंने मुशर्रफ से डायलॉग किया, जो पाकिस्तान गए जिन्होंने हुर्रियत से डायलॉग किया। मुफ्ती साहब उसी प्रोसेस को आगे चलाना चाहते थे, वो बड़ी बात थी। मगर आज की सरकार छोटे छोटे दिन ब दिन के दिन जो काम है उनके लिए दिल्ली के दरवाजों पे जाने की उनको जरूरत पड़ती है। तो ये सोचने वाली बात है कि मुफ्ती साहब का नजरिया, मुफ्ती साहब की सोच, और वही सोच है पीडीपी का एजेंडा, जिसको आपने दो हाथों से पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर को हमने इस दलदल से निकालना है, इस मुसीबत से निकालना है, तो फिर हमें दिन रात वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम 96 से काम करते आए। बैठना नहीं है। अब आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, आपको डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बनानी है, आपको जोन प्रेसिडेंट बनाने हैं, आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाने हैं, आपको डेस्क प्रेसिडेंट बनाने हैं, आपको वार्ड प्रेसिडेंट बनाने हैं। कहीं रुकना नहीं है। आने वाले वक्त में हम पंचायत इंचार्ज बनाएंगे पंचायत इलेक्शन के, हम टाउन इंचार्ज बनाएंगे जो टाउन का इलेक्शन देखेंगे। मगर काम बहुत है, आगे करने के लिए काम बहुत है। इसलिए मेरी आप सब आए हो, जम्मू से आए हैं, कुटवा से आए, पता नहीं कहां से, यहाँ से जम्मू के साथियों को मैं अपने कश्मीर के साथियों को बताना चाहती हूँ, जम्मू का एक मेरा साथी हजारों के बराबर, क्योंकि उन्होंने इतने मुश्किल हालात में, मैं जब जम्मू में गई और जिस तरह ये इलेक्शन लड़ रहे थे, वल्लाह बीजेपी और कांग्रेस वाले, अगर कांग्रेस इतने दिल से इलेक्शन लड़ती तो शायद वहां का रिजल्ट कुछ और होता, जितने हमारे लोग इलेक्शन लड़ रहे थे। इसलिए मुझे आप लोगों से ये कहना है कि हमारी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है, हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस वक्त बेरोजगारी आसमान को छू रही है, लोग, हमारे नौजवान हमारे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इस वक्त रिजर्वेशन के बारे में लोग बात करते हैं। हमारा ये मानना है जो कमजोर तबका है, जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, बेशक उनकी रिजर्वेशन जरूरी है, मगर जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं, जो ओपन मेरिट के लोग, उनके गर्दन पे छुरी रख के नहीं रखी है, उनका
मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि अभी देखिए नीट में अगर 500 सीटें हैं, 250 पहले ही बाहर चली जाती है, उसके बाद जो बचता है उसमें ओपन कैटेगरी के लिए कुछ भी नहीं, न होने के बराबर। यही नौकरियों का होता है। अभी देखिए पुलिस की भर्ती हुई, 3000 पोस्ट, 6 लाख लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। कहां जाएंगे, क्या करेंगे? बिजली का हाल, मुझे याद है जब मुफ्ती साहब पहली बार वजीर आला बने तो उन्होंने पापोर में गैस टर्बन चलाया, इसलिए कहा कि लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। सर्दी है, ठंड है, तो मुझे मालूम नहीं है कि ये जो यहाँ हमारी इस वक्त सरकार बनी है, इनको ये एहसास है कि लोगों को इस वक्त बिजली न होने की वजह से कितनी मुश्किलात हो रहे हैं। क्या ये जो दिल्ली इनका आना जाना रहता है, क्या ये वहां बात करते हैं हमें एक्स्ट्रा बिजली चाहिए, हमारे लोग ठंड में ठिठर रहे हैं? ये तो मीटर लगाने के तो उन्होंने ऑर्डर दे दिए, मीटर फटाफट लगाओ, मगर जहां मीटर्ड एरिया है वहां भी बिजली नहीं होती। तो मेरा कहना यह है कि हमें दिलबर रास्ता नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि आने वाला जम्मू कश्मीर में जो आज तक अच्छा किया वो पीडीपी के हाथों से हुआ, और आइंदा भी जो अच्छा होने वाला होगा इंशाल्लाह वो आपके हाथों से होगा। मगर अपना एजेंडा भूलना नहीं है। अमन की बात इज्जत के साथ, हाँ, ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी, शाहदुरी, ये बातें भूलनी नहीं है। ये हमारे जम्मू के साथी भी हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी जगह को हुआ 2019 के बाद इक्तिसादी तौर वो जम्मू को हो गया। कश्मीर को तो जज्बाती तौर ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि कश्मीर को कहीं ना कहीं ये रखते हैं, थोड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर को देखा जाता है। मगर जम्मू की जो तबाही हुई और हमारे रिसोर्सेज, मुझे ये ख्याल था कि जब नई सरकार बनेगी तो कुछ ना कुछ तब्दीली होगी, ये छापे बंद हो जाएंगे, ये सरकारी मुलाजमों को नौकरियों से बाहर निकालना बंद हो जाएगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही चालू है। अभी पिछले दिनों हमारे 2-3 सरकारी मुलाजमों को निकाल दिया। हम तो सोचते थे जिनको निकाला है उनको भी रिव्यू करेंगे। हमने सोचा था कि जब ये दिल्ली जाएंगे अमित शाह साहब से मिलने के लिए तो उनसे हमारी कैदियों की बात करेंगे। मैं नहीं कहती वो रातों रात उनको खुला छोड़ देंगे, मगर जिनके खिलाफ कोई केस ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक 5 साल से, उनका क्या कसूर है? जो बेचारे बीमार हैं उनको यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं, वो तो कर सकते हैं, मगर बदकिस्मती है। हम तो आपसे 370 की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल में आपका उस पर उतना नहीं कर सकते आप लोग। मगर ये जो डे टू डे मसले हैं, हमारे बिजली है, हमारे कैदी बंद हैं, जेलों में बंद है, नीट का जो 50% बाहर चला जाता है, हमारे यहाँ जो नौजवान पढ़े लिखे हैं जो स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं उनका दायरा, उनको बहुत कम हो रहे हैं उनकी सीटें, तो कोई बात ही नहीं होती है, कोई फर्क ही नहीं है। और तो लोग तो सोचते थे कि जब सरकार आएगी 200 यूनिट छोड़ दीजिए, मगर कम से कम बिजली में इंप्रूवमेंट होगी, और कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, मगर उनको बताना चाहते हैं कि लोग बड़ी मुश्किल में हैं, बड़े बहुत ही उम्मीदों से लोगों को आपने चुना है, तो इसलिए कम से कम ये तो ठीक है दिल्ली आना जाना लगा रहता है, बाकी लगा रहता है, गुलमर्ग भी ठीक है, बर्फ में भी वो फोटो खींचना भी ठीक